Today we discuss about the Newton's second law, is the real law of motion. There are three laws: first law, second law, and third law. But we want to prove that the second law is the real law of force. और ऐसा तब प्रूव होगा अगर सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही प्रूव कर लें. और आपको पता है सेकेंड लॉ F equals to ma, it is also equals to rate of change of linear momentum. It is the second law of motion. Now we want to prove first law. And first law is the law of inertia. If body is at rest, remains at rest. If body is in motion, continue in motion, in uniform motion, in absence of external force. Means F equals to 0. Ma equals to 0. M is not equal to 0. It means A equals to 0. And there are two possibilities A equals to 0. There are two possibilities. First, V0, then A0 हो सकता है. And second, V equals to constant. और ये फर्स्ट लॉ बताता है, जानो कैसे? In absence of external force, body can't change its position. Body is at rest, remains at rest. Body is in motion, continue in motion with uniform motion. V constant ये बताता है अगर बॉडी मोशन में रहेगी तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, in absence of external force. सेकेंड लॉ लेके चले और फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया, और अब थर्ड लॉ प्रूव करके दिखाते हैं आप. थर्ड लॉ, it is also known as action and reaction law. It is also known as action and reaction. That means F1 is equals to minus F2. और ये प्रूव करना है with the help of second law. सेकेंड लॉ की हेल्प से प्रूव करना है. Okay? Now, as you know that from second law, F equals to delta P upon delta T. So delta P is equals to F delta T. Now for first body, delta P1 equals to F1 delta T. For second body, the change in momentum will be F2 delta T. As you know that from Newton's second law, in absence of external force, change in momentum remains constant. Means if F equals to 0, delta P equals to 0, or P constant, it means for a complete system, delta P1 plus delta P2 equals to 0. It means F1 delta T plus F2 delta T equals to 0. Or
F1 equals to minus F2. F1 equals to minus F2. Every action there is a equal and opposite reaction. और ये थर्ड लॉ है. और लेके चले हम लोग सेकेंड लॉ. ये लेके चले थे, इधर सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ लेके चले, थर्ड लॉ प्रूव हो गया. सेकेंड लॉ लेके चले, फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया. दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ फोर्स. इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ रियल ऑफ द फोर्स या रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है. इज इट क्लियर? और इसी वीडियो हम लोग लेके चल रहे हैं इम्पल्स. नाउ डिस्कस अबाउट द इम्पल्स. Impulse. If a force acting on a body for a short interval of time, known as impulse. If a force acting on a body for a short interval of time, that is known as impulse. So many examples. If you're driving a nail with the elbow hammer in a wooden block, it is also one example of impulse. आप नेल को स्ट्रक कर रहे हैं हैमर से, इट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स. सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू फायर द गन, इट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स. इफ हिटिंग द बॉल बाय क्रिकेट बैट, इट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पल्स. सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्पल्स. और इम्पल्स में अगर हमें मेजर करना है इम्पल्स, तो इम्पल्स is equals to average force into time. जब भी टाइम बहुत छोटा है इसके बावजूद भी एवरेज फोर्स लेना पड़ रहा है. और उसका रीजन ये है कि फोर्स इतने छोटे टाइम में भी कांस्टेंट नहीं होता है. जीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो आएगा. इतने कम टाइम में भी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए एवरेज लेके चल रहे हैं. जब आप बैट से बॉल को हिट कर रहे हैं, पहले बॉल टच होगी, पूरा इम्पैक्ट लगेगा, फिर जब हट रही होगी तो फोर्स रिड्यूस हो रहा होगा, जीरो हो जाएगा जब वो चली जाएगी. तो इम्पल्स में जो फोर्स होता है, भले टाइम बहुत कम हो, इसके बावजूद भी फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है. दैट्स वाई here we take impulse equals to average force into time. even कि टाइम बहुत छोटा है इसके बावजूद. so impulse equals to f average into delta t लिख सकते हैं आप, और t भी लिख सकते हैं. और f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, f मीन्स एवरेज फोर्स, ये मान के चलो. We also know that F into delta t equals to delta p. Delta p means P2 minus P1. That's why impulse equals to P2 minus P1 also. तो एक और फॉर्मूला मिल गया आपको impulse का, P2 minus P1. The change in momentum is also known as impulse. तो impulse के दो फॉर्मूले हो गए. एक तो हो गया फोर्स इनटू टाइम, और एक चेंज इन लीनियर मोमेंट. सो I equals to F into T equals to P2 minus P1. दैट इज इम्पल्स. तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकेंड. न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स. डायमेंशनल फॉर्मूला भी जान लो इसका. I equals to F into T, और F का आपको पता है MLT माइनस 2 होता है, इंटू T कर दिया तो हो जाएगा ML
t minus 1. MLT minus 2 is the force, t is for time, so MLT minus 1 is the dimensional formula of impulse. Application जानो उसकी impulse की. First, as you know that in case of the cricket, जब फील्डर कैच कर रहा होता है तो अपने हाथ को नीचे लेके जाता है इस तरह. क्यों? टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल. अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा तो थ्रस्ट या जो फोर्स लगेगा हाथों पर वो रिड्यूस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इम्पल्स में कांस्टेंट क्वांटिटी होगी. सपोज भाई इतने ऊपर से बॉल आ रही है, इतनी आएगी तो इम्पल्स इतना लगेगा. अब दो तरीके हैं. टाइम कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा. तो इम्पल्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान के चलो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के. लाइक सपोज आई इक्वल्स टू 50 न्यूटन सेकेंड. तो ये ऐसे भी हो सकता है 10 into 5 अगेन 50, या 5 into 10 अगेन 50. अगर टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा. और इसीलिए जब प्लेयर कैच कर रहे होते तो यूं कर रहे होते हैं, टाइम इंटरवल बढ़ाना होता है. और टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगा. दिस वन एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन शॉकर सिस्टम. जो गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, आजकल तो साइकिल में भी आ गए, तो उसमें शॉकर लगे होते हैं. शॉकर में क्या होता है, स्प्रिंग होती है और फ्लूइड भरा होता है. और कोई भी इरेगुलरिटीज रोड पे आती है तो क्या होगा, पहले स्प्रिंग कंप्रेस होगी. कंप्रेस होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है. फिर वापस आएगी अपनी पोजीशन पे, फिर उसको फ्लूइड के अगेंस्ट चलना पड़ेगा. कंप्रेस हुई फिर एलंगुएट हुई, उन दोनों ही केसेस में उसको फ्लूइड के अगेंस्ट काम कर रहा है तो टाइम इंटरवल बढ़ जाता है. और जब टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि जो जर्क लगेगा, जर्क जो लगना चाहिए, जो फोर्स लगना चाहिए वो उतना नहीं लगता है. नहीं, गाड़ियों में जब शॉकर बैठ जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो पूरा जर्क आ जाता है गाड़ी के ऊपर. जो बंदा गाड़ी में बैठा वो कहता है कि लगता है शॉकर खराब हो गया आपकी गाड़ी की. क्यों? क्योंकि जर्क महसूस होना लगता है. तो शॉकर अगर सही है तो जर्क नहीं लगती. जो लग्जरी गाड़ियाँ होती, महंगी गाड़ियाँ, उनमें शॉकर बहुत हाई क्वालिटी के लगे होते हैं. और इसीलिए जो पीछे बंदा बैठा है, जो मालिक बैठा होता है गाड़ी के अंदर, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई इरेगुलरिटीज या ब्रेकर वगैरह कुछ आ गए. क्यों? हाई एब्जॉर्बर होते हैं. और ऐसे ट्रेन की बॉगीज के साथ भी यही सिस्टम लगाया जाता है. बफर सिस्टम बोलते हैं टू रिड्यूस सीवियर जर्क ड्यूरिंग शंटिंग. बफर सिस्टम लगा होता है, वो भी यही कैटेगरी होती है. तो ये एप्लीकेशन थी इम्पल्स की. अब ट्रैक्टर देखो, अब ट्रैक्टर में शॉकर नाम की चीज ही होती है, बस इतना अच्छे नहीं होता. और इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर पर एक जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर के सीट के नीचे तो शॉकर लगा होता है स्प्रिंग, वो तो इधर रहता ही. और साइड में जो बैठे होते यूं बैठे होते. क्यों? पूरा जर्क आता है. साइड बैठे ऐसे नहीं बैठे होंगे, आराम से पकड़ के बैठते हैं. एक सीट ड्राइवर की सीट पे हाथ होता है कि यूं पकड़े होते हैं, क्योंकि जर्क पूरा आ जाता है, इसलिए ऐसा होता है. क्लियर? तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स. चलो एक दो न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इम्पल्स के ऊपर. जो ये फॉर्मूले ड्राइव किए हम लोगों ने, उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इम्पल्स के. सुने स्टेटमेंट, a cricket ball of mass 150 gram is moving with velocity of 12 meter per second
and is hit by a bat, so that the ball is turned back with the velocity of 20 meter per second. If the duration of contact between the ball and the bat is 0.01 second, 0.01 second, find the impulse and the average force exerted on the ball by the bat. ठीक, एक तो हमें इम्पल्स निकालना है और एवरेज फोर्स भी निकालना है. क्या क्या दिया हो वो जानूंगा. मैं स्टेटमेंट दोबारा कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ. A cricket ball of mass 150 gram (150 10 to the power minus 3 किलोग्राम हो गया. इनिशियल स्पीड गिवन, इट्स 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल भी दिया हुआ है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. इट्स 20 मीटर पर सेकेंड, and the time interval is very small, that is 0.01 second. अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलें तो ये हो जाएगी नेगेटिव. क्यों? बैक इधर आ रही तो इधर आपने भेज दी, और वेलोसिटी है तो नेगेटिव साइन लगाना ही पड़ेगा आपको. फाइंड द इम्पल्स. तो इम्पल्स इक्वल्स टू P2 माइनस P1 और m v minus u. 150 10 to the power minus 3, that is minus n कॉमन ले, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, माइनस कॉमन ले ली. 20 plus 12, so minus 150 10 to the power minus 3 into 32. और जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.8 न्यूटन सेकेंड. ये इम्पल्स आ गया. इसका एक पार्ट और बचा हुआ है. दे वांट फोर्स. F इक्वल्स टू I over T हो जाएगा. एवरेज फोर्स इक्वल्स टू I निकाल चुके हैं हम लोग, -4.8 and 0.01 is the time interval. So this equals to minus 480 Newton. ये एवरेज फोर्स हो गया. क्लियर? एक और लेके चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग. स्टेटमेंट्स होने, a hammer weighing 1 kilogram moving with a speed of 20 meter per second strikes the head of a nail, driving it 10 centimeter into the wall, driving it 10 centimeter into the wall. Neglecting the mass of the nail, calculate the acceleration during the impact, the time interval during the impact and the impulse. दोबारा सुनो इसका स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है वो भी लिखते जाएंगे साथ साथ, और इसको सॉल्व भी करते जाएंगे. A hammer weighing 1 kg, mass of the hammer is 1 kg, moving with a speed of 20 meter per second
it's 20 meter per second, strikes the head of a nail driving it 10 centimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. The acceleration during the impact. V तो 0 हो गया होगा, आया और रुक गया उसका. Calculate the acceleration. ये पहला बात हो गया. तो अब इसमें थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा. टेन टेन और -2 तक -1 हो गया इंटू a equals to -20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 और ये 10 ऊपर चला जाएगा. माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन आ गया. Time interval during the impact. They want time interval during the impact. तीन निकलवा रहे हैं. As we know that first equation v equals to u plus at. अब ये लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब एक्सेलरेशन आ गया है. u is 20, a is 2000, 20 divided by 2000, 0.01 seconds. Clear? और थर्ड पार्ट, they want impulse. impulse निकलवा रहे हैं. कई सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम भी लगा दो. m v माइनस u, m 1 है, v 0 है, u 20 है. So impulse is minus 20 Newton seconds. ये भी एक न्यूमेरिकल था. तो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते रहते हैं. इज इट क्लियर? और अगली वीडियो हम लोग लेके चलेंगे अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन ए लिफ्ट. लिफ्ट में अगर बंदा है तो उसका अपरेंट वेट क्या होगा. जब लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ऊपर जा रही, नीचे जा रही, डिफरेंट केसेस, कैसे मास वेरी करता है, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो. ओके.